Hello, champions. Welcome to the next lecture series on the GATE 2026 Data Science and Artificial Intelligence. Today, I will explain you how you can solve the calculus related questions with the help of the shortcut tricks. Myself, Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. If you are interested to join with me, you can scan and join my free WhatsApp group. चलिए बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल as you all knows, you have requested me in my WhatsApp group, sir kindly start the lecture series on the data science and AI. फाइन, तो मैं इसके लिए इसीलिए मैं आज ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिए क्या ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और कितने स्टूडेंट चाहते हैं. अगर तो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी अच्छी हुई कमेंट्स बॉक्स में, फाइन, देन आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज एंड अपलोड मैनी वीडियोस टू हेल्प यू टू क्रैक the data science examinations. Fine. So all are depending upon your responses and the comment. How many students are the students of the data science and AI? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. F is a function which are defined on this semi-closed interval. Which of the following is exactly two roots, minima, maxima and so on. बच्चों सबसे पहले डोमेन को देखिए. फाइन, डोमेन आपके पास क्या है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं. If F is defined on the closed interval, fine, then there is a guarantee that maxima and minima exist. There is a guarantee of the maxima and minima, fine. But if F is defined on the open interval, then there is no guarantee of the maxima and minima, fine. लेकिन यहाँ पे देखो एक तो क्लोज इंटरवल दे दिया ना, तो इसका मतलब 3 पे x इज इक्वल टू 3 पे आपके पास मैक्सिमा मिनिमा की गारंटी हो सकती है. फाइन, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. f of x has a root. What is the definition of the root? You have to prove that f of 1 must be 0. So you can clearly say what is f of 1? 0 satisfied. How you can check about the minima and the maxima? I can start with the first derivative to be 0. What is the first derivative? 3x square minus 6x is equal to 0. So if you take 3 cancel out, x is a common, either x is 0 or 2. Then we can find the second derivative, 6x minus 6. Now clearly say f double dash of 0, which is minus 6, less than 0, which implies x is equal to 0 is the point of the minima. Sorry, less than 0 is the point of the maxima. Fine. And second derivative at the point 2, 12 minus 6 is a positive, which implies x is equal to 2 is the point of the minima. Also आपके पास close interval दिया हुआ है. I can check at the point 3 also. What is the value of the 3? 12, 18 minus 6, 12, which is greater than 0. So yes, the point x equal to 3 is the point of the maxima. Fine. Clear? तो इसका मतलब मैक्सिमा एट 0 ओनली, दैट्स रॉन्ग. यू हैव द टू मैक्सिमा. और इन दोनों की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, क्या वैल्यू सेम आएगी इस पॉइंट पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ 0? एफ ऑफ 0 विल बी 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ 3? सो दैट्स 27 minus 27 plus 2. यस, दोनों की वैल्यू सेम आ गई. तो दैट मीन्स 0 एंड 3 आर द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा. लेकिन ये कह रहा है ओनली 0. फाइन. मिनिमम एट द पॉइंट 2 ओनली. यस, एक ही पॉइंट आपके पास मिनिमम. एफ हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स. अब रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं. हाउ यू कैन चेक अबाउट द रूट्स? रूट्स के लिए क्या करोगे आप? वी कैन अप्लाई द इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम. फाइन. तो आपका टारगेट क्या है? माइनस 0.9 पे चेक करना, एफ ऑफ 0 पे. अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन आ गए, देन यू कैन से यस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट. एफ ऑफ 0 कितना हो गया? f of 0 will be 2. That is my positive. f of minus 0.9, तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा. दिस नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव एंड प्लस ऑफ 2. तो जैसे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट नंबर विल बी माई लेस देन 0. व्हाट डज इट implies? That implies at least one root lies between close interval minus 0.9 to 0. Fine. लेकिन अब एटलीस्ट वन रूट तो मिल गया, लेकिन ये कह रहा है एग्जैक्टली 2 रूट्स. इसको कैसे चेक करेंगे आप डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं. फाइन. सो डेरिवेटिव आपने पहले ही निकाल रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x. सो क्लियरली से आई कैन टेक 3x इज कॉमन, x माइनस 2. इसका साइन चेक कर लो क्या होगा.
x minus 2 in the given interval minus 0.922 is a negative. X is also negative. So the product is my positive. F dash is greater than 0. That means F is increasing. तो जैसे ही F इंक्रीज हुआ मतलब ये आपका नंबर है 0.9 और ये 0.9 पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज ही करेगा ग्राफ. तो इसका मतलब इंक्रीज करेगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा आपको. बट ही सेड 2 पॉइंट. दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. B and D are the right answer of the problem. Look at the next one. उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे. फाइन. The number of the bijection map from S to S such that F composition F of N is equal to N. इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेसिकली? F circle F will be my identity. Fine. Then your target is to find the number of the such map. अब F circle F identity कब हो सकता है? एक तो हो सकता है F will be I identity map और F identity नहीं हो सकता. तो you have the two options. Fine. F is equal to identity means F of 1 पे चला जाए, F of 2 पे चला जाए एंड so on. तो ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे? नंबर ऑफ सच फंक्शन इज ओनली 1. F of is the identity map. और सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है F of A आपका किसी और पॉइंट पे चला जाए लेकिन आपको आइडेंटिटी चाहिए. दैट मीन्स F of B मस्ट बी A. फाइन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई फिक्स पॉइंट. फाइन. अब आप यही चीज यहां लगा लेते हैं. F of A is B, F of B is equal to A. तो इसका मतलब A मेरा 1 हो गया और B मेरा 2 हो गया. फाइन. मतलब F of 1 will be my 2, F of 2 is equal to 1. What about the other? उसको मैं 3 को 3 पे मैप कर देता हूं, 4 को 4 पे भी. दैट मीन्स 3 and 4 are my fixed point. Fine. And 1 and 2 are my cycle. Similarly 1 को 3 पे मैप कर दे रहा हूं और 3 को 1 पे और बाकी दोनों सर्कल साइक्लिक सेम कर. तो ऐसे कितने मैप बनेंगे? मतलब 2 at a time. Out of 4, 2 at a time. That is my 6. क्लियर? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि F of A आपका B को चला जाए, F of B आपका C को चला जाए और F of C आपका A को चला जाए. तब तो केस में F सर्कल F बनेगा ना आपका I. लेकिन आपको तो 2 मैपिंग चाहिए. क्लियर? और कोई केस बन सकता है इसमें? ऑफ कोर्स अगर आप 1 और 2 को मैप कर दो जैसे इसको करा है और F of 3 को 4 पे मैप कर दो और F of 4 को 3 पे कर दो. फाइन. इसका मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, दोनों साइकिल हैं. और क्या हो सकता है? 1 से 3 मैप कर दो, 2 को 4 पे कर दो, 1 को 4 पे मैप कर दो और 2 को 3 पे मैप कर दो एंड सो ऑन. और कितने मैप बनेंगे ये? 4C3. और क्योंकि रोटेशन भी होगी तो हाफ हो जाएगा. और अदरवाइज देखो हाफ क्यों होगा? आप 2 को 3 पे मैप कर दो और 1 को 4 पे रह गया. तो ये देखो ये दोनों के सेम हो गए ना, तो रेपिटेशन होगा इसलिए हाफ कर दिया. तो दैट विल बी 6/2 इज द 3. फाइन. तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1 + 6 + 3 दैट इज माई 10 इज द राइट आंसर. और तो कोई केस नहीं ना बनेगा. सो 10 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट वन. द वैल्यू ऑफ summation I is equal to 0 to infinity, summation j is equal to 1 to infinity. Fine. Now clearly say I and j are my independent. अगर इंडिपेंडेंट है इसको मैं सेपरेट करके लिख ले रहा हूं. फाइन. तो ये चीज क्या बन गई आपके पास? दिस इज माई जीपी सीरीज. और ये सेकेंड टर्म अगेन दिस इज द जीपी सीरीज. तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी A/1 minus r. So what is the first term? 1. Second r is half. Look at the next. First term, because j start from the 1, first term is 1/3. Common ratio is 1/3. The first term is my 2 is 1/2. Answer is 1 is the correct answer of the problem. Look at the next one. Your target is to find the limit, find the value of the L. Okay. ये चीज क्या है आपके पास? क्या दिमाग में आता है जब भी ये चीज देखते हो? दैट इज माई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n. दैट मीन्स दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन.
That means probability of x is equal to k. फाइन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है ना, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़्ड पावर x ओवर x फैक्टोरियल. यहाँ पे x की जगह पे k है. अब आप इसको जब खोलोगे, व्हाट विल हैपन इफ k इज इक्वल टू 0 प्लस k इज इक्वल टू 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू k इज इक्वल टू n. और उसके बाद इसकी लिमिट लेनी है आपको एज n अप्रोचेस इंफिनिटी. तो ये क्या चीज बन गई आपके पास इनसाइड क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट द CDF. फाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n. अब आप लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी है तो यू हैव टू अप्लाई द सेंटर लिमिट थ्योरम. तो आपका x फॉलो करेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन n को. सो आई कैन कन्वर्ट टू द सेंटर लिमिट थ्योरम z x minus what is the mean of the Poisson distribution n, what is the standard deviation of the Poisson distribution, root of n. So I can change to be z. Probability z is less than n minus n over root n, 0. So normal distribution में n is less than is half is the correct answer of the problem. एक चीज याद रखो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं n अप्रोचेस इंफिनिटी कर दूं, तो ये आपकी लिमिट क्या बन गई, k is equal to 0 to infinity of Poisson distribution. That is the sum of the probability mass function of the Poisson distribution which comes to be 1 always. फाइन, लेकिन वो गलत हो जाएगा बिकॉज आपका यहाँ पे देखो n अप्रोचेस इंफिनिटी पे हर जगह पे फिल होगा ना, क्लियर. और PMF जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पे आपके पास डोमेन क्या होनी चाहिए, 0 से इंफिनिटी. लेकिन यहाँ सम कितना हो रहा है, फाइनाइट सम हो रहा है आपके पास, क्लियर. तो इसलिए ये सम ऑफ द PMF नहीं होगा आपके पास, क्लियर. सो द आंसर इज A इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. तो आप बताइए कमेंट करके कितने लोग चाहते हैं कि और वीडियोस डाटा साइंस की अपलोड हो. आई विल अपलोड द वीडियोस बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स सो दैट आई कैन नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डाटा साइंस ग्रुप. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. आई होप यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक्स फॉर द सपोर्ट.